So good morning to all. Continuing with our accounting terms. Yesterday we did 5, I think, business transactions, event, account, capital, drawing. कुछ जला लो भैया से बोलो कोई बात नहीं उनसे बोलो. So continuing with the next one. Liability. Liability. What business owes to outsiders? What business owes to outsiders? Amount. Amount which business owes to amount which business owes to outsiders is known as liability. Liability means debt. Liability means debt. Debt means उधार. हमारे ऊपर ये एक तरीके का उधार है बिजनेस के ऊपर, which business has to pay. Means debt and business has to pay to creditors. क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनको हमने पेमेंट करनी होती है. Creditors are the person or parties to whom payment is to be made. Payment is to be made. Keep your cameras on. Everyone keep the camera on. Liabilities happen because firm purchases goods on credit, firm takes service on credit, firm takes money लोन पे, तो फिर वो पैसे सब वापस करने पड़ते हैं. That becomes our liability. That becomes the liability of the business. All the payments which are to be made to outsiders, that is known as liability. There are two types of liability: internal and external. Internal and external. Internal and external. Internal liability, which is to be paid to the owners, which is known as capital. फर्म ने जो कैपिटल बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट की थी बिगिनिंग में, वो भी वापस करनी होती है. दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल, इंटरनल लाइबिलिटी. एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी मींस आउटसाइडर्स.
Further, it is divided into two more types: current liability and non-current liability. Current liability and non-current liability. Further, it is divided into two more parts: current liability and non-current. If the amount is to be paid within 1 year, it is current liability. If the amount is to be paid within 1 year, it is current liability. And if the amount is to be paid after 1 year, then it is non-current liability. You can also call it short-term liability and long-term liability. Short term and long term, which can also be named as current and non-current liabilities. Current and non-current liabilities. This is liability. What business owes to others? Amount which business owes to others. After this, very important, next one is assets. Assets. Assets are valuable वैल्यूएबल रिसोर्सेस, कोई भी ऐसी चीज जिसकी कोई वैल्यू होगी मनी में और वो बिजनेस की अपनी है, दैट इज असेट. कोई भी चीज, इवन एक छोटी सी सुई भी अगर बिजनेस की अपनी प्रॉपर्टी है, खरीदी हुई है, तो वो उसके असेट है. पैसे, कैश असेट है. बैंक में जो पैसे जमा है वो भी असेट है. हमने किसी से पैसे लेने हैं वो भी असेट है. हमारे पास लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, मोटर व्हीकल है, टाइपराइटर है, फर्नीचर है, जितनी भी चीजें हमारे पास बिजनेस के पास है और जिनकी मनी में कुछ वैल्यू है, दे ऑल आर नोन एज असेट्स. दे ऑल आर नोन एज असेट्स. असेट्स आर ऑफ मैनी टाइप्स. पहले आप इतना नोट करिए, assets are of many types. So assets के मैंने आपको एग्जांपल दिए बहुत सारे: लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, टाइपराइटर, कंप्यूटर. आपके पास कोई गाड़ी है, मोटर व्हीकल. आपकी जो दुकान है वो किसी जमीन पे है, इसलिए वो लैंड भी आएगी उसमें. शॉप आएगी आपकी. बहुत सारे हैं. सो आई विल टेल यू वन बाय वन असेट्स. सबसे पहले असेट में आ जाते हैं करंट असेट.
लिक्विड असेट, टेंजिबल असेट, intangible asset, ये इतने टाइप की असेट है अलग अलग। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेट। ये क्या होती है और उनके एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूं फटाफट। करंट असेट, all the assets which can be converted into cash within 1 year, within 1 year। आपके पास कुछ भी है और अगर आप उसे 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब बेच के उसे उसकी जगह कैश आपके पास आ सकता है, देन इट इज अ करंट असेट। करंट असेट्स आर दोज विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, बिकॉज आपके पास कोई भी असेट हो उसकी वैल्यू होनी चाहिए कुछ कैश में, मनी में, देन फर्म की वो असेट मानी जाएगी। फर्म के पास उसका पजेशन होना चाहिए। फर्म शुड पजेस दैट असेट, ओन, ओनर। फर्म शुड बी द ओनर ऑफ दैट असेट। सो एनी असेट, आपके पास स्टॉक है, सामान है, अगर आप उसे बेच के 1 साल के अंदर उससे पैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं पैसों में, तो वो आपकी करंट असेट कहलाएगी। नहीं बेच पा रहे, 1 साल से ज्यादा लग रहा है, तो नॉन करंट असेट। नॉन करंट में आपका आता है फिर टेंजिबल, इंटेंजिबल। फिर है आपकी लिक्विड असेट। लिक्विड असेट 3 months। Any asset which can be converted into cash within 3 months is known as liquid asset. Then tangible assets, all those assets which can be seen and touched। बड़ी बड़ी जो assets हैं which can be seen and touched, land, building, बड़े बड़े प्लांट लगे होते हैं, मशीनरी प्लांट होते हैं जिसको कि आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, दे ऑल आर नोन एज करंट असेट्स। All are known as current assets. Not current, tangible assets, which can be seen and touched, a land, building, plant, machinery, and so on. Then there are intangible assets. Intangible assets which cannot be seen and touched. गुडविल, गुडविल, नेम, फेम, रेपुटेशन। जो भी नेम है आपका, जो भी फेम है मार्केट में, उसके बेसिस पे आपका बिजनेस जो है काफी बढ़ता है। कस्टमर्स कम बैक टू यू इन द फॉर्म ऑफ, कस्टमर्स आपके पास वापस आते हैं और आपको वो बिजनेस देते हैं। इंटेंजिबल असेट्स, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम जो होता है,
ब्रांड की कितनी वैल्यू होती है, ब्रांड के नाम से लोग जो है आंख बंद करके चीजें खरीदते हैं, तो बिजनेस को फायदा होता है उससे। दिस पेटेंट, पतंजलि जितनी भी दवाइयां बना रहे हैं या कोई भी कंपनी जो दवाइयां बनाती है वो उसका पेटेंट करा लेती है, देन ओनली दैट कंपनी कैन यूज दैट फॉर्मूला, दैट कंपनी कैन ओनली मेक दैट मेडिसिन अंडर देयर नेम, नो अदर कंपनी कैन डू इट, तो उससे उनको फायदा होता है। दैट इज ऑल्सो आवर इंटेंजिबल असेट। कॉपीराइट, आपने देखा होगा प्रिंट मीडिया में कोई भी चीज जो है आप उसको कॉपी नहीं कर सकते, ओरिजिनल उसकी जो है आपको कॉपी लेनी पड़ेगी। यू कैन नॉट फोटोस्टेट इट, यू कैन नॉट सेल डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ इट, कॉपीराइट एक्ट होता है वो, राइट। फिल्म्स बनती है, आपका बुक्स छपती हैं, बुक को भी आप जो है छाप के दोबारा बेच नहीं सकते, वो भी कॉपीराइट एक्ट होता है। और इसी का पैसा मिलता है ऑथर को, फॉर एवरी बुक printed and sold he gets some royalty, royalty is also there। तो ये सारे आपके इंटेंजिबल असेट्स हैं। इवन क्या कहते हैं उसे, जो सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, है ना, जितने भी सॉफ्टवेयर में आपने देखा होगा, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, जो ये सॉफ्टवेयर्स हैं, जीएसटी का जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है, वो आप उसकी जो है कॉपी नहीं बना सकते। यू कैन ओनली गेट द ओरिजिनल वंस, परचेज द ओरिजिनल वन, यू कैन नॉट मेक ए कॉपी एंड सेल। वो भी एसेट होती है, बिकॉज इससे जो है उनका जो है बिजनेस जो है बढ़ता है। फिर आपका एक और है फिक्टिशियस। लेटर ऑन यू विल अंडरस्टैंड, जब आपको आगे डिटेल में 6-7 चैप्टर आप पढ़ लेंगे। फिक्टिशियस असेट्स, ये कुछ असेट्स ऐसी होती हैं which are treated as assets but we cannot derive any cash out of them, उससे हमें कोई कैश नहीं मिलता है, but we consider them as our assets because of those assets, because of those assets our business progresses। तो असेट जो है, जो हमने ये पढ़ा है अभी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, असेट्स। Assets are the valuable resources owned by the business, owned by business। आपका जो घर है वो आपकी एसेट है, आपकी जो कार है वो आपकी एसेट है, आपके घर में जितना भी फर्नीचर है, फ्रिज है, टीवी है, एसी है, साइकिल है छोटी सी, राइट, जितनी भी छोटी छोटी चीजें आपके घर में आपके पास है, वो सब आपकी असेट्स हैं, उनकी कुछ वैल्यू है मनी में। तो इसलिए असेट्स के बहुत सारे एग्जांपल, कैश भी हमारी असेट है, बैंक बैलेंस भी हमारी असेट है, जिनसे हमने पैसे उधार लेने वापस, वो लोग भी हमारी असेट है। अगर मुझे सुरेश से 10,000 रुपए लेने, तो सुरेश इज ऑल्सो माई असेट टिल द टाइम ही पेज मी। फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, मोटर कार, मोटर व्हीकल, चाहे टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, छोटी छोटी चीजें भी घर में जो छोटी छोटी चीजें हैं आपकी, वो सब आपकी एसेट्स हैं, बिकॉज उनकी कोई वैल्यू है मनी में और आप उनके मालिक हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ डेफिनेशन विद द एग्जांपल, valuable resources owned by business and it should have money value, money value is must, money value is must। So this is all about assets।
नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स हमारी एसेट होते हैं, ये दो हैं। ट्रेड पेबल्स हमारी लायबिलिटी होते हैं, ये भी दो है। ट्रेड रिसीवेबल में एक है नंबर 1 डेटर्स। ये दो हैं, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल्स। डेटर्स, डेटर्स आर दोज पर्सन और पार्टीज जिन्होंने हमसे उधार लिया है। उधार क्या क्या लिया होगा? या तो कैश, या तो गुड्स सामान, या कोई सर्विस। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमसे कैश, गुड्स या सर्विस उधार में ली है और उन्होंने अभी तक हमें पेमेंट नहीं की है। तो जब तक वो हमें पेमेंट नहीं करेंगे तब तक के लिए वो हमारे डेटर्स हैं। उनको डेटर्स कहते हैं। डेटर्स मीन जो हमारे डेप्ट के नीचे दबे हुए हैं। डेप्ट, डेप्ट वर्ड आपने सुना होगा इंग्लिश में, डेटर, उसी से बना है डेटर। डेटर आर दोज पर्सन और पार्टीज हु हैव टेकन कैश, गुड्स और सर्विस। उन्होंने लिया हमसे और अब उन्होंने हमें अभी तक हमें पेमेंट नहीं की है। द पेमेंट इज नॉट yet received from them. So till the time payment will not be received from them, they will be called our debtors and they are the assets of the firm. उसी तरीके से बिल्कुल अपोजिट हो गया क्रेडिटर्स। ये वो लोग हैं जिनसे बिजनेस ने कुछ उधार लिया है, या तो कैश, गुड्स या फिर सर्विस, एंड पेमेंट इज ड्यू। क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट करनी है और डेटर्स से हमने पेमेंट लेनी है। क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट करनी है और डेटर्स से हमने पेमेंट लेनी है। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। इज इट क्लियर? पुनीत, आर यू गेटिंग? Supreet, Yes, sir. are you getting? Your camera is Yes, not sir. on. Why? All those who are in the class should keep their cameras on all the time. Are you getting? Are you noting down all the things? Yes, sir. Okay. Priyadarshini, you are getting? Khush Rawal? Yes, sir. Very good. So डेटर्स, क्रेडिटर्स, वैसे ही आपके बिल रिसीवेबल, बिल पेबल। बिल रिसीवेबल एंड बिल पेबल। बिल रिसीवेबल का मतलब होता है हमने किसी को सामान उधार दिया, फिर एक बिल बनाया उसके ऊपर, उसने वो बिल एक्सेप्ट कर लिया और वो बिल हमारे पास आ गया है। वो बिल हमारे पास जब तक रहेगा वो बिल रिसीवेबल है। जब हम सामान उधार देते हैं किसी को, उसमें पहले से पता होता है कि 3 महीने बाद पेमेंट करनी है, 4 महीने बाद पेमेंट करनी है। तो सामान जब उधार में देते हैं तो जो हमारे डेटर होते हैं वो हमें रिटर्न में एक बिल के ऊपर साइन कर देते हैं कि हम ये पेमेंट आपको बाद में करेंगे। जब तक वो बिल हमारे पास रहता है उसे हम कहते हैं बिल रिसीवेबल। दिस इज ऑल्सो आवर असेट। और अगर हमने कहीं से उधार लिया है और हमने पेमेंट करनी है इन द फॉर्म ऑफ बिल, देन इट इज बिल पेबल।
then it is called bill payable. So only these many we will do today because उसमें आज types ज़्यादा थे. In the next class we will proceed further. साथ साथ अपडेट करते रहिए. कल मैंने आपको इसका एक चैप्टर भेजा है पूरा, सेकंड चैप्टर. Excuse me, sir. Yes. Sir, what is the meaning of fixation assets? है? Fixation assets. I am not getting. Sir, what is the meaning of fixation assets? Fixation. स्पेलिंग बोलो. FICTITION. fictitious assets. Fictitious assets, I told you, are those assets which cannot derive any cash, out of which we cannot, business cannot derive any cash. अभी हमने उसको ज्यादा बताया नहीं आपको, because you will not get it, you will get it after some time. फिर भी नाम नोट कर लीजिए. उसमें आपका होता है डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट. ये कुछ एग्जांपल मैंने उसके लिख दिए. ये हम शो करते हैं एज आवर असेट्स, बट दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश. कैश कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम देम, बट उनसे हमें बेनिफिट मिलता है, इसलिए वो हम उसको असेट काउंट करते हैं. लेटर ऑन आफ्टर 4-5 चैप्टर्स आपको जो है ये बात समझ में आएगी जब हम इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे. अभी यू विल नॉट गेट, बट यू कैन लर्न दैट fictitious and nominal asset, these are also known as nominal assets. Nominal assets. Okay, who was asking that? Sir, Supreet Kaur. Okay, fictitious or nominal assets, name उनके नोट कर लीजिए. So this is all for today. This class will come back for business after second period. Third period will be the business period. Till then take your classes and update your work. Thank you. God bless all of you. Thank you, sir.